اور عام لوگ یہ برابر ہو ہی نہیں سکتے. چاہے آپ کے پاس کتنی ہی جانکاری ہو، آپ کے پاس چاہے جتنی جانکاری ہو، اگر آپ نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا ہے تو جو علم حاصل کیا ہے، جو کسی سے علم حاصل کر کے سند لیا ہے، اس کے برابر آپ ہو ہی نہیں سکتے. جس کے پاس قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، مسائل کا علم ہے، فقہ کا علم ہے اور سیرت کا علم ہے، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات کا علم ہے، اس کے برابر آپ ہو ہی نہیں سکتے، چاہے آپ کتنا ہی برابری کر لیں. اسی لیے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ علماء کا سونا، جو علماء سوتے ہیں وہ بھی ان کا عبادت میں لکھا جاتا ہے. اگر ایک عالم سنت کے مطابق عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو جائے اور ایک جو عالم نہیں ہے اور رات بھر نفلیں پڑھے، پھر بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ سمجھانے کے لیے ہے، لیکن آج میرے پیارے بزرگ اور دوستو ہمیں کہیں سے تھوڑا سا علم کسی کے ذریعے سے، کہیں یوٹیوب کے ذریعے سے، کسی مولانا کے ذریعے سے تھوڑا معلومات ہو جاتی ہے تو ہم اپنے آپ کو بڑے عالم شمار کرنے لگتے ہیں اور ہمیں وہ جہالت کی طرف لے جاتا ہے. پھر ہم عالموں کو، حافظوں کو اپنے سے نیچے سمجھنے لگتے ہیں اور یہ بہت بڑی علامت ہے گڈھے میں لے جانے کی. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، میں ایک مثال دے کر کچھ واقعات بتلاؤں گا، کچھ مثالیں دے کر سمجھاؤں گا کہ عالم اور جاہل یعنی نہ جاننا اور جاننا یہ کیسے برابر نہیں ہو سکتے. شیطان کا دربار لگا ہوا ہے، مشہور واقعہ ہے، بار بار آپ سنتے ہوں. شیطان کا، ابلیس کا دربار لگا ہوا ہے. ہر شیطان اپنے کارنامے کو آ کر کے بیان کر رہا ہے. ابلیس اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے. ایک شیطان آیا، اس نے کہا کہ میں نے آج 2 لوگوں میں طلاق کروا دی. یہ معمولی بات نہیں ہے، ہم لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں کہ طلاق ہو جائے. یہ مباح جتنی چیزیں ہیں، جتنی جائز چیزیں ہیں، ان جائز چیزوں میں سب سے بیکار چیز جو ہے یہ طلاق ہے. آسمان اور زمین اس دن کانپ جاتے ہیں جس دن طلاق ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جائز کہا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر طلاق دے کر کے اپنی زندگیوں کو خراب کر لیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے طلاق کروا دیا. شیطان نے کہا واہ واہ، بہت اچھے، بہت اچھا کام آپ نے کیا، بیٹھ جاؤ. پھر دوسرا آیا، اس نے کہا میں نے مرڈر کروا دیا، کسی کا قتل کروا دیا، ہے نا. حدیث میں آتا ہے کہ قاتل کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ سیدھے جہنم میں جائے گا. شیطان ابلیس اس پر بھی خوش ہوا، بہت اچھا بہت اچھا، شاباشی دی، اس کو بھی بٹھا دیا. اسی طریقے سے ایک ایک شیطان آتے گئے، اپنے کارنامے گناتے گئے. کسی نے کہا میں نے قتل کروا دیا، کسی نے کہا میں نے جو ہے میاں بیوی میں جھگڑا کرا کر طلاق کرا دیا، کسی نے کہا میں نے آپس میں پڑوسیوں کو لڑا دیا، کسی نے کہا میں نے بھائی بھائیوں میں تفرقہ پیدا کر دیا، جائیداد کے لیے جھگڑا لڑا دیا، کسی نے کہا میں نے کسی کی ایک بالش زمین غصب کروا لی. اپنے اپنے کارنامے جتنے گناہ تھے، کسی نے کہا میں نے کسی سے جھوٹ بلوا دیا، کسی سے چوری کروا دیا، ڈاکہ ڈلوا دیا. ہر ایک کو شاباشی دیتا تھا، لیکن اس کو وہ خوشی نہیں ملتی تھی جو خوشی اس کو مطلوب تھی. سارے شیطان اپنے کارنامے بیان کر کے جب پورا ہو گیا، لاسٹ میں ایک کمزور سا شیطان آیا. اس نے کہا کہ میں نے ایک بچے کو مدرسے جانے سے روک دیا، میں نے ایک بچے کو پڑھنے جانے سے روک دیا. ابلیس اپنے تخت پر سے اچھل گیا، اس کو اپنے سینے سے لگایا، کہا واہ واہ، تو نے دنیا کا سب سے بڑا کام کیا ہے. تو جو ترم خواہ ہوتے ہیں نا، جو میں نے کہا کہ جب آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے تو اتنے بڑے بڑے کارنامہ کیے اور یہ چھوٹا سا کام، جب آدمی چھوٹا بڑا سمجھنے لگتا ہے نا تو پھر وہی گڑبڑی ہوتی ہے. تو ابلیس بھی تو ابلیس ہے، وہ سمجھ گیا چہرے کے امپریشن دیکھ کر کے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنا بڑا کام کرا دیا، میں نے قتل کرا دیا، میں نے میاں بیوی میں طلاق کروا دیا، میں نے پڑوسیوں میں جھگڑا کروا دیا، میں نے چوری کروا دی، ڈاکہ ڈلوا دیا. یہ اتنا خوش نہیں ہوا، ایک چھوٹے سے بچے کو بہکا دیا. چھوٹے سے بچے کو بہکا دینا کون سا بڑا کمال ہے. تو ابلیس کہا کہ میں سمجھ رہا ہوں جو تم لوگ سوچ رہے ہو، آؤ میرے ساتھ، میں دکھاتا ہوں کہ میں ایک بچے کو پڑھنے سے روکنے پر کتنا خوش کیوں ہوا. اس نے اپنا لباس تبدیل کیا،
अच्छा खासा हुलिया बनाया, जुब्बा कुब्बा पहना और एक गधा लिया। गधा लेकर के एक आबिद के पास गया जो इबादत गुजार थे, सालों से अल्लाह की इबादत किया करते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं था। उनके पास इल्म नहीं था, थोड़ी मोड़ी मालूमात थी, उसकी बिना पर वो इबादत किया करते थे, अल्लाह की याद में मस्त रहा करते थे। एक जंगल के किनारे में पड़े थे और हमेशा अल्लाह की याद में मस्त रहा करते थे कि दुनिया से कोई मतलब नहीं। इब्लीस उनके पास गया, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो जब जवाब आया, उन बुजुर्ग ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहा कि मैं जिब्रील हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके पास मुझे भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी इबादत को कबूल कर लिया, आपको मेराज में बुलवाया है। अब उन बुजुर्ग का इतना सुनना था कि वो बुजुर्ग जो है खुश हो गए। वाकई मैं तो इतने दिन से अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला को मेरी इबादत पसंद आ गई होगी, बिल्कुल बुलाया होगा। कहा कि देखो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बुराक भी आपके लिए भेजा है, ये जन्नत से सवारी आपके लिए आई है। मैं फरिश्ता हूँ, मैं जिब्रील हूँ, आपके पास आया हूँ, आपको ले जाने के लिए आया हूँ। वो खुशी खुशी बैठे और उनको बिठाया, गधे पर बिठा करके ले गया। गांव के बाहर जो गंदी नाली बह रही थी, जो कचरे जहां पर फेंके जा रहे थे, वहीं पर उनको ढकेल दिया। कहा तेरी मेराज यही है, कहा तेरी मेराज यही है। फिर अपने चेले चपाड़ियों को लेकर के एक आलिम आबिद के पास गया, जिनके पास इल्म था, जिनके पास इबादत का, मामलात का, माशरत का, ईमानियात का, सारी चीजों का इल्म था। उन्होंने इल्म हासिल किया था और इसके साथ साथ आबिद भी थे, अल्लाह की इबादत भी करते थे, अल्लाह की इबादत भी किया करते थे। उनके पास गया, वही सलाम जवाब हुआ। कहा कि मैं जिब्रील हूँ, आपके पास आया हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी इबादत को कबूल कर लिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मेराज में बुलवाया है। तो उन आलिम ने कहा कि वे कमबख्त शैतान इब्लीस मरदूद, मैं ही तुझे मिला था बहकाने के लिए। नबी का सिलसिला खत्म हो गया, अब दुनिया में कोई नबूवत वाला काम बाकी रहेगा। नबी दुनिया में नहीं आएंगे। जब नबी नहीं आएंगे तो फरिश्तों का नुज़ूल, फरिश्तों के जरिए से वही कैसे आ सकती है? तो मुझे बहकाने चला है। उन्होंने लानत करी और शैतान पर लानत भेजी, औज़ बिल्लाह पढ़ा, उसको भगा दिया। कहा कि देखो यही फर्क है, अगर इसको बचपन में पढ़ने से रोक दिया गया होता तो मैं इसको ऐसे ही बहका देता, जब चाहता बहका देता, लेकिन इसके इल्म की वजह से पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, पूरी जोर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं पर ये मेरे बहकावे में आएगा। इसके इल्म के जरिए से ही बहकाना पड़ेगा, इसको मामूली तरीके से नहीं बहका सकते हैं। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये होता है फर्क। मैं बार बार, या उलमाए कराम जहां पर आप बयान सुनते होंगे, क्यों जोर दिया जा रहा है कि अपने बच्चों को दीनियात का इल्म सिखाने, दीनी इल्म सिखाएं, बच्चों को इल्म देना जरूरी है। ये इसीलिए जरूरी है कि मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अभी मैं आज ही की न्यूज पढ़ रहा था। आज की न्यूज मैंने शायद पिछले हफ्ते भी बताया होगा कि आज की न्यूज है मुबारकपुर की। एक बच्ची हमारी जो है गैर मुस्लिम के साथ शादी करके अपने मजहब को तब्दील कर लिया। ये क्यों हो रहा है? ये इल्म ना होने की वजह से हो रहा है। ईमानियात का इल्म, इबादत का इल्म, माशरत का इल्म, अखलाकियात का इल्म, जो चीजें जरूरी इल्म थी, जो बुनियादी जरूरी इल्म है, उसको हमने नहीं सिखाया बच्चों को। हमने ग्रेजुएशन कराया, हमने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, दुनिया की आला से आला तालीम उसको दिलाया है और अपने पेट काट काट करके उसकी फीस अदा किया है, लेकिन अपने बच्चों को सही दीन सिखाने की हमने फिक्र नहीं की है, जिसकी बुनियाद पर ये शैतान मरदूद आते हैं, हमारे बच्चे बच्चियों को उचक कर लेकर चले जाते हैं, फिर हम हाथ मलते रह जाते हैं, अफसोस करते हैं। तो वही मैं कहा करता हूँ, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, मरा बैल घास खाता नहीं। उस वक्त से पहले पहले तैयारी कर लो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों। अपने बच्चों को दीन की जो बुनियादी चीजें हैं, बुनियादी जो इल्म है, उनको सिखाना जरूरी है। ईमानियात का इल्म मामूली नहीं होता है। अभी मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बच्चे का आप मुआयना करेंगे, मोहल्ले में आप सर्वे कर लें, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका कुरान मुकम्मल हो चुका है, लेकिन आप उनसे पूछेंगे कि आप बता दो कि मशहूर किताबें कितनी हैं आसमान की, या मशहूर फरिश्ते कितने हैं, मशहूर नबी कौन कौन से हैं, तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों वो नहीं बतला पाएंगे। किताबों पर इल्म लाना,
आसमानी किताबों पर आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला व बअस बअदल मौत। इनमें जितनी चीजों का जिक्र किया गया है ये सब चीजें गैब की चीजें हैं, दिखाई नहीं देती हैं और इस पर ईमान लाना फर्ज है। अगर इसमें से एक में भी कमी हो जाएगी तो हमारे ईमान मुकम्मल नहीं होगा, हम ईमान में दाखिल नहीं हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब आप सोच लें कि अगर उसके पास कुरान का इल्म है, कुरान हमने सिखा दिया, कुरान पढ़ना आ गया, कुरान तो एक गैर मुस्लिम भी पढ़ सकता है। आप जाकर के देखें कितने सिख ऐसे हैं जो पाबंदी से सूरह यासीन की तिलावत किया करते हैं और सूरह यासीन की तिलावत करने के बाद अपनी दुकान को खोला करते हैं। मेरी खुद कितने ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है जो जिनको सूरह यासीन पढ़ना आता है। कुरान तो हर एक लैंग्वेज में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है और जितनी जबानें हैं सारी जबान में कुरान करीम है। जो लोग सीखते हैं फायदे का इल्म, यहूदियों का आप इंटरव्यू पढ़ें, वो उन्होंने हमारे इल्म का मुताला हमसे ज्यादा किया हुआ है और हमारे इल्म में जो कहीं थोड़ी सी कमजोरी दिखाई देती है उसी कमजोरी की वजह से हम पर हमला करते हैं, दबोचने की कोशिश करते हैं। हाँ, हम यही दुखती रख पर इनके हाथ रख देंगे तो ये हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है इल्म सीखने का, हमारे पास वक्त नहीं है इल्म सीखने का। एक बुजुर्ग अल्लाह वाले जंगल में इबादत किया करते थे तो उनको जंगल से खुशबू आया करती थी, उस खुशबू की वजह से उनको इबादत में खलल होता था, उस खुशबू की वजह से इबादत में उनको खलल होता था। तो उन्होंने क्या किया, वो तो बेचारे आलिम थे नहीं, कोई चीज का मसाइल का पाकी ना पाकी का इल्म बहुत ज्यादा मालूम था नहीं, बस अल्लाह की इबादत किया करते थे। उन्होंने क्या किया कि भाई ये तो खुशबू आ रही है, तो इस खुशबू की महक को रोकने के लिए कोई ऐसी चीज जो बदबू वाली चीज हो हम लगा लें ताकि उसकी खुशबू रुक जाए। तो उन्होंने क्या किया, गंदी चीज लिया, रुई का पहा बनाया और नाक में लगा लिया, गंदी चीज को नाक लगा करके नाक में लगा लिया और पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत करते रहे। जब किसी आलिम का गुजर हुआ तो कहा कि आप ये क्या लगा रहे, बदबू आ रही। कहा कि मैं जो खुशबू से बचने के लिए कर रहा हूँ। कहा कि अल्लाह के बंदे, पाकी तो नमाज के लिए शर्त है, पाकी तो नमाज के लिए शर्त है। आज हम नमाज पढ़ रहे हैं, पाकी हमें मालूम ही नहीं है, वजू के फराइज मालूम ही नहीं है, गुस्ल के फराइज मालूम नहीं है। आज शावर का जमाना चल रहा है, जब गुस्ल के फराइज नहीं मालूम होंगे, एक बार भी बराबर सूखा रहेगा, हमारा गुस्ल नहीं होगा, हमारी पाकी नहीं होगी। जब पाकी नहीं होगी तो नमाज पढ़ते रहो, रोजा रखते रहिए, कुरान की तिलावत करते रहो, ये सवाब की बजाय उल्टा गुनाह हमारा शुमार किया जाएगा। इसीलिए कहा गया कि बुनियादी इल्म सीखना जरूरी है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इन्हीं सब चीजों को देख करके देखते हुए दीनियात ने जो निसाब बनाया है, मैंने पिछली जुमा में जल्दबाजी में कह दिया था कि 15 साल का निसाब। एक तो लोग वैसे ही दीनियात से भाग रहे हैं, कहा 15 साल लग जाएगा, 15 साल। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये 15 साल स्टेप बाय स्टेप है, 5-5 साल करके है। 5 साल शुरुआत में प्राइमरी का निसाब है जिसमें आपको 40 हदीसें ज़बानी तर्जमे के साथ सिखाई जाती हैं। हदीस में आता है कि जिसको 40 हदीसें ज़बानी याद हो वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए, इतनी बड़ी फजीलत है। और इसके बाद अस्माए हुस्ना, पूरा अल्लाह के 99 नाम 5 साल में सिखाए जाते हैं। और अल्लाह के 99 नाम की तरकीब यह है कि जिसको अल्लाह के 99 नाम याद होंगे वो अल्लाह के 99 नाम लेकर के जब दुआएं मांगेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ जरूर कबूल करेगा। और किसी हदीस में भी आता है कि इन्हीं अल्लाह के 99 नाम में से एक नाम इसमें आज़म में भी आता है, और इसमें आज़म जिसको मिल जाए वो जो चीज कहे अल्लाह तबारक व तआला से वो पूरी करते हैं। बहुत मामूली चीज नहीं है हम अस्माए हुस्ना याद करना। तो इन 5 सालों में बच्चे धीरे धीरे अस्माए हुस्ना पूरा याद करते हैं और अकायद का इल्म हासिल करते हैं। अकायद बहुत बड़ी चीज होती है। आज हमारे पास अकायद नहीं है, हमारा अकीदा क्या है, हमारा इस्लाम के तहत अकीदा क्या है। बस हमने सोचा नमाज पढ़ लिया, रोजा रख लिया, ईमानियात, इबादत, मामलात, माशरत, अखलाकियात, इन 5 चीजों का नाम दीन है। इन 5 चीजों का इल्म हासिल करना जरूरी है। इन 5 चीजों के तहत हमारी किताब में जो निसाब रखा गया है उसी के तहत ये निसाब रखा गया है। सबसे पहले कुरान के तहत 2 साल हमारे यहाँ नूरानी कायदा पढ़ाया जाता है। 2 साल के बाद जब नूरानी कायदा मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद बच्चों को कुरान सिखाया जाता है, अम्मा पारा सिखाया जाता है। उस अम्मा पारा में भी पहले हम इजरा करवाते हैं।
मैं बता रहा हूं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं इंशाल्लाह आपका थोड़ा सा वक्त लूंगा। मैंने एक बच्चे को बुलाया है, वो बच्चा आपको सुनाएगा। मैंने कहा ना कि आप सुनते हैं, मैं बार बार कहा करता हूं, आप सुनते हैं देखते नहीं। हमारे पास तो आप आए नहीं, आ जाओ बेटा, हमारे पास आप आए नहीं, आपने तो देखा नहीं कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है कुरान। आज हमने सोचा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, इसको हम कुरान पढ़ना कहते हैं। तो यार बुजुर्गों और दोस्तों, इस तरीके से अगर हम कुरान पढ़ेंगे तो कुरान हम पर लानत करेगा, कुरान हम पर लानत करेगा। कुरान किस तरीके से, जो सही तरीका है, सही हरफ अगर हम नहीं निकालेंगे तो मानी बदल जाते हैं। हुरूफ का सही निकालना, कहां पर खींचा जाएगा, कहां पे जल्दी पढ़ा जाएगा, कहां पर जो है कलकला होगा, कहां पे मद होगा, कहां पे गुन्ना होगा, वो सारी चीजें हम सिखाते हैं बच्चों को। पढ़ो। इसलिए इसको जल्दी पढ़ेंगे। ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा हो। इज़ा ज़ाला बेज़ुल्ला पर ज़ज़्म है इसलिए उससे पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। इज़ा ज़ुल्ज़ा ज़ेर ज़ी ज़ाल मुतहर्रिक इसलिए इसको जल्दी पढ़ेंगे। इज़ा ज़ुल्ज़ी लाम ज़बर लाम मुतहर्रिक इसलिए इसको जल्दी पढ़ेंगे। इज़ा ज़ुल्ज़िला लाम ज़ेर तिल्ला पर ज़ज़्म है इसलिए उससे पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ें। अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि कुछ हर्फ लिखे जाते हैं मगर पढ़े नहीं जाते। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल हमज़ा दाल ज़बर और रा साकिन से पहले ज़बर है इसलिए रा फूल होगी। ज़ाल पेज़ ज़ाल मुतहर्रिक इसलिए इसको जल्दी पढ़ेंगे। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़ाल लाम ज़ेर ज़िल लाम पर ज़ज़्म है इसलिए उससे पहले वाले हर्फ मिलाकर पढ़ेंगे। ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा। लाम ज़बर लाम मुतहर्रिक इसलिए इसको जल्दी पढ़ेंगे। हा अलिफ ज़बर है, अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा हो गया। आगे आयत वक्त की वजह से हम साकिन करके वक्त करेंगे। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़। मैं तो सोचा था तो आपको पूरी सूरत सुनाऊंगा, लेकिन वक्त नहीं है, सबकी नजरें घड़ी की तरफ ही रहती हैं। इस तरीके से हम पूरा अम्मा पारा पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ जो ताखीर होती है कुरान पढ़ाने में, जो वक्त लगता है, उसकी असल वजह यही है मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों। इसीलिए हमारे यहाँ ताखीर होती है। बच्चा एक एक चीज को, जबर हमने पढ़ा, जबर को जल्दी क्यों पढ़ा, वो उसकी वजह बतलाएगा आपको कि मैंने रा पे पुर पढ़ा है, जो मोटा करके पढ़ा है, अल्लाह जो मैंने पढ़ा है, अल्लाह पढ़ा है, ये क्यों पढ़ा है, उसकी वजह बतलाएगा आपको। आप सर्वे करके देख ले, बच्चों का कुरान मुकम्मल हो जाता है लेकिन बच्चों को हवा भी नहीं लगती कि ये सब चीजें क्या होती हैं, कहां पर ठहरा जाता है, कहां पर किस तरीके से रुका जाता है। ये सारी चीजें जरूरी है मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों। ये तो एक मिसाल है। इसके अलावा बच्चों को फराइज, वाजिबात, गुस्ल के फराइज, नमाज के वाजिबात, नमाज के अंदर जितनी चीजें हैं, और पूरे सादो कलमे तर्जमे के साथ दुआ सुबह से लेकर शाम तक जो है रोजमर्रा की जो दुआएं होती हैं, उन दुआओं का तर्जमा के साथ बाकायदा उनको याद कराया जाता है और अमली मश्क भी कराई जाती है। और सबसे बड़ी चीज जो है, हमारे यहाँ मसलक की कोई पाबंदी नहीं है, मसलक के बारे में कोई बहस ही नहीं होती है। आप कोई किताब उठा करके देख लेंगे, इसमें मसलक का कोई जिक्र ही नहीं है। कुछ बच्चे जो है हमारे यहाँ से छोड़ करके चले गए, देवबंदी, बरेली और अहले हदीस, इसके चक्कर में छोड़ करके चले गए। मैं उनको समझाना चाहता हूँ। मैंने उससे पूछा कि भाई आपने क्यों छोड़ दिया, तो बच्चे का कहना था कि आप बा जबर बा पढ़ाते हैं और हम आप बाजेर बी पढ़ाते हैं और हम बाजेर बे पढ़ते हैं, हम बाजेर बे पढ़ते हैं। तो ये है, आप तो अलिफ बा पढ़ाते हैं, नहीं सॉरी, उसने कहा था अलिफ बा ता सा पढ़ाते हैं, हम जो है अलिफ बे ते से पढ़ते हैं। ये क्या है, ये बचपना है, बचपना है मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों। अगर बा ही पढ़ लिए या बे ही पढ़ लिए, तो जब बे पढ़ेंगे तो जब बाप बे जेर बी तब भी होगा, बा जेर बी तब भी बे वही होगा, बी तब भी होगा, बे पढ़ेंगे तब भी होगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल तब भी होगा, और बे पढ़ेंगे तब भी रब्बिल ही रहेगा, कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है। हमने कभी भी मसलक पर कोई बहस ही नहीं की है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बुनियादी इल्म सिखाना बच्चों को जरूरी है। आज हमने उलझा के इसमें रख दिया है, देवबंदी, बरेली, अहले हदीस, इसमें बच्चे और बूढ़े जवान सब परेशान हैं।
रफ़े यदैन करना, यहाँ पे हाथ बदला, अरे जो बुनियादी जरूरी चीजें हैं, नमाज में क्या फर्ज है क्या सुन्नत है, उसको हमने सीखा नहीं। इसके बगैर मैंने बार बार कहा करता हूँ कि अगर आप हाथ नहीं उठाएंगे, हाथ नहीं बांधेंगे, फिर भी आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन आपका सूरह फातिहा नहीं होगा तो आपकी नमाज नहीं होगी। अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो माफ करना, लेकिन हकीकत कहना ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दाखिला एडमिशन शुरू है, और इस साल मैंने एक तरतीब बनाया है कि बस यही 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर एडमिशन कर लूंगा, उसके बाद मैं नहीं लूंगा। पिछले साल जो है आखिर तक आते रहते हैं, एडमिशन होता रहता है, और फिर पता चला कि बच्चों का जो सबक छूट गया और पूरा नहीं होता तो कहते हैं कि आपने सही तरीके से पढ़ाया नहीं है। तो पूरा सिस्टम से इंशाल्लाह इस साल चलेगा। जिसको एडमिशन कराना हो जल्द से जल्द एडमिशन करा दें। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।